Hello students. Now we discuss about methods of exporting. Companies that plan to engage in exporting have a choice between two broad options. First one is direct exporting, second one is indirect exporting. The first alternative is direct exporting, in which the manufacturer takes upon himself the task of managing the export sales in the foreign countries. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर जो है वो डायरेक्ट सेल कर रहा है, डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है. This naturally means greater involvement on his part in export business. The second alternative is indirect exporting, in which the manufacturer sells its product to another party in its own country. इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर खुद नहीं सेल कर रहा बट अनदर पार्टी को सेल कर देता है. फिर जो फॉरवर्ड सेलिंग कर देता है, एक्सपोर्ट कर देता है फॉरेन कंट्रीज़ में. यानी मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग नहीं कर रहा. ओके, क्लियर? दिस इज कॉल्ड indirect exporting. The manufacturer does not involve himself in international marketing. The middlemen get the goods produced from the manufacturer under their own specification and sell these products in overseas markets at their own risk. Which of the two will be more suitable for a particular manufacturer for a particular market? यहाँ हम टर्म यूज़ कर रहे हैं पर्टिकुलर, मैन्युफैक्चरर के लिए भी और मार्केट के लिए भी. विल डिपेंड ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स. कौन से फैक्टर्स? सच एज साइज ऑफ द मार्केट, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट लाइन एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ एंट्री. तो कॉस्ट फैक्टर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. These are also cases where both the methods are employed. ओके, तो ये हो गए मेथड्स. अभी हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग. In direct exporting, the manufacturer takes upon himself the task of managing the export sales. Usually, a home based export department or international marketing department in the firm is given responsibility for selling the products in foreign countries. Due to the more involvement, the exporter has far more control over its international operations. Now, the degree of risk involved in direct exporting is very high. है ना? रिस्क होता है जब हम विद इन द बाउंड्रीज कर रहे हैं, नेशनल बाउंड्रीज विद इन द कंट्री कर रहे हैं, तभी भी बहुत रिस्क होता है. बट जब हम बात कर रहे हैं क्रॉस द बाउंड्रीज, तब तो डिग्री ऑफ रिस्क और बढ़ जाएगा. क्लियर? बट सो आर द पोटेंशियल रिटर्न्स. अब रिस्क ज़्यादा लिया तो क्यों ले रहे हैं रिस्क? कि हमें लग रहा है कि हमें ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है. ओके, तो these both are correlated. Firms with considerable export business usually resort to direct exporting. Clear? Now, a number of organization arrangements are available to an exporter for carrying on direct exporting.
The export business may be conducted by a home based export department or division. Home based export department. There are four important types of home based export organizations. First one is built in export department. Built in means कि अलग से हमको एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ विद एन ऑर्गेनाइजेशन. ओके. अनदर वन इज़ सेपरेट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट. सेपरेट जिस तरह और डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, एक सेल्स हो गया, परचेज हो गया, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया. देन नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट सेल्स सब्सिडरी. यहाँ हम बात कर रहे हैं बजाय कि एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट सेपरेट डिपार्टमेंट के हम एक्सपोर्ट सेल्स सब्सिडरी बोल देते हैं. लाइक सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं है बट सब्सिडरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं पैरेलल टू सेल्स एक्टिविटीज़. क्लियर? नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट कंपनी. लाइक हमने एक्सपोर्ट कंपनी के थ्रू करना है एक्सपोर्ट. ये तो होगी बात के होम बेस्ड एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट और डिविजन्स की फोर टाइप्स. Then the firm may decide to have its own branch or plant in a foreign market. An overseas sales branch enables a firm to carry out the marketing activities in the foreign market more effectively. The firm may employ traveling salesmen for the foreign market. These traveling salesmen may be home based or may be attached to the overseas branches. क्लियर कि जो ये ट्रैवलिंग सेल्समैन होंगे ये होम बेस्ड भी हो सकते हैं एंड ओवरसीज ब्रांचेस से भी हो सकते हैं. देन द फर्म में अपॉइंट एक्सक्लूसिव एजेंट्स इन द ओवरसीज मार्केट्स. ओके, अपॉइंट भी किए जा सकते हैं एक्सक्लूसिव एजेंट्स. क्लियर? देन एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग करते हैं हम. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंप्लीट कंट्रोल. एज एक्सपोर्टर परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस of foreign trade, so he has complete control over export pricing, packaging, promotion, distribution and other activities. Then short distribution chain. शॉर्ट हो गई ना, डायरेक्ट कर रहा है, लाइक मैन्युफैक्चरर जो है वो खुद डील कर रहा है सामने वाली पार्टी से, तो शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन चेन है. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटर नॉलेज ऑफ कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स. ड्यू टू डायरेक्ट टच विद द फाइनल कंज्यूमर्स एंड रीटेलर्स, द मैन्युफैक्चरर इज इन अ पोजिशन टू गेट बेटर नॉलेज of the requirements of the buyer. This leads to better adaptability. Okay. Then reputation and goodwill. If the product of a manufacturer is successful in foreign markets, he builds up name, reputation and goodwill at the international level. ओके, इंटरनेशनली हो गया ना, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो. नेक्स्ट वन इज रिलायबल इंफॉर्मेशन. ड्यू टू डायरेक्ट टच विद द फाइनल कंज्यूमर्स एंड रिटेलर्स, द मैन्युफैक्चरर हैज़ फुल इंफॉर्मेशन regarding marketing opportunities, trends and competition. Next one is full returns. The sales potential and profit is often much more significant as compared to indirect exporting.
because the exporter does not have to share his profits with anyone else. क्लियर कि मतलब अपना प्रॉफिट जो मार्जिन है उसमें से कुछ भी शेयर नहीं करने की ज़रूरत है कि वो डायरेक्ट काम कर रहा है खुद. देन डिसएडवांटेजेस भी करते हैं डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के. मोर रिस्क हो जाता है ना. हाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हम हाई डिग्री ऑफ रिस्क फेस करेंगे. तो ज़्यादा तो होगा ही ना रिस्क. बिकॉज द एक्सपोर्टर हिमसेल्फ परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ फॉरेन ट्रेड. और क्योंकि और कोई भी मिडल मैन नहीं है तो डायरेक्ट जो रिस्क है वो भी बियर करना पड़ेगा एक्सपोर्टर को ही, मैन्युफैक्चरर को ही. क्लियर. नाउ higher investment. Direct exporting requires huge financial resources in order to support adequately the cost of selling, development of export organization, transportation, etc. ये जो सारा कॉस्ट है ना, इन्वेस्ट तो कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर. तो जो ये कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अलग हो गया, बट जो एडिशनल कॉस्ट ऐड ऑन होती जाएंगी तो वो भी इन्वेस्टमेंट में ही हम ऐड कर रहे हैं, तो हायर इन्वेस्टमेंट हो जाता है. नेक्स्ट वन इज रिक्वायर्स मैनेजरियल एबिलिटी. डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग रिक्वायर्स प्रॉपर नॉलेज ऑफ एक्सपोर्ट मैनेजमेंट. The exporter should have proper knowledge about social, cultural, political, economic situations prevailing in the foreign markets. देखो जब हम विद इन बाउंड्रीज कर रहे हैं ट्रांजेक्शन्स, तब तो हमें अपनी बाउंड्रीज लाइक अगर हम नेशनल लेवल की बात करते हैं हमें थोड़ा सा आइडिया है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स, बट फिर भी थोड़ा सा आइडिया है हमें. हम अब कह सकते हैं अप टू 70%, क्योंकि चेंजेस यहाँ भी होते रहेंगे. लाइक पॉलिटिकल हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज चेंज हुआ, ठीक है. फिर कल्चर वाइज, डेमोग्राफी वाइज भी बहुत अफेक्ट होता रहता है. इकोनॉमिक सिचुएशंस तो चेंज होती रहती हैं. अब यहाँ का हमें थोड़ा सा आइडिया है, बट फॉरेन मार्केट्स का आइडिया नहीं है. लाइक अगर हम और कंट्रीज़ में डील करने लग जाएं तो वहाँ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. तो इसके लिए भी एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है हमें, ताकि जिसे प्रॉपर नॉलेज हो इस सब की. नेक्स्ट वन इज़ नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल फर्म्स. क्लियर. स्मॉल फर्म्स के लिए सुटेबल नहीं है. नेक्स्ट, डिसइकोनॉमीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. In direct exporting, the exporters may not be able to obtain economies of large-scale distribution as compared to indirect exporters, who can avail economies of large-scale distribution by combining several shipments together. Next one is lack of specialization. Since a direct exporter looks after numerous activities of production, distribution, and marketing, as he may not do justice to any one of them. अब एक साथ एक्सपोर्टर को ही सारे रोल प्ले करने पड़ेंगे. लाइक सेल भी कर रहा है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, तो ये सारी एक्टिविटीज़ एक साथ करना थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस लेवल पे भी फ़र्क पड़ता है. देन ओवरऑल
खुद करना पड़ता है, तो लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन हो जाता है। ओके, थैंक यू।